Hello everyone, so the question is an aqueous solution of metal bromide that is MbR2 having 0.05 molar concentration is saturated with H2S, right? What is the minimum pH? We have to calculate minimum pH at which Ms, that is our metal sulfide, will precipitate. Ksp for Ms is given as 6 into 10 to the power 21. Concentration of saturated H2S is given as K1 is given as and K2 is given as for the reaction, right? So first of all, we have to calculate minimum pH. So for that, for the precipitation of Ms from the solution of MbR, we can write for the precipitation of metal sulfide from a solution of MbR2, right? MbR2 passing by passing H2S. So by passing H2S, we can write that Ksp for Ms, this can be written as M2 plus concentration into S2 minus concentration, right? So, or we can also write it as, if we put these values, so it will be 6 into 10 raised to power minus 21, as the Ksp for Ms is given, right? And this should be equals to, for 0.05 for M2 plus, and we have to find S2 minus. So right here, right? So from here, if you calculate the concentration of S2 minus, so this will be actually equals to 1.2 into 10 raised to power minus 19 molar, right? We know that we can say that precipitation of Ms will start when H2S provides 1.2 into 10 raised to power 19 molars ions of S2 minus. So for H2S, we can write that first of all, for H2S, what we can write? We can write that first of all our reaction, that is H2S, and it gives 2H plus and plus of S2 minus, right? So we are having two reaction, and in order to calculate the K, we can write their multiplication. So K1 into K2, if two are added, its K is multiplied. So this can be written as H plus concentration into H2 minus concentration, and dividing this with our reactant, that is H2S, right? And here it will be square of it, right? So now on further solving this, or we can write for 10 raised to power minus 7 into 1.3 into 10 raised to power minus 13, this should be equals to H plus into 1.2 into 10 raised to power minus 19 upon concentration of H2S is given as 0.1, right? So from here, what we can write, that we can write, sorry, it will not be square right here because we have multiplied this, right? So this value will be equals to, we can write that H plus concentration, this will be equals to 1.04 into 10 raised to power minus 1, right? And we have, if we have H plus concentration, so we know that pH, it is equals to minus of log H plus concentration, right? So from here, if we put this H plus value right here, the value of pH we are having is 0.9826. So this is our required answer. Thank you. Hello everyone. In this question, it is given that the pH of a bloodstream is maintained by a proper balance of H2CO3 and NaHCO3 concentrations. We have to find out volume of 5 molar NaHCO3 solution should be mixed with 110 ml of blood, which is 2 molar H2CO3, in order to maintain a pH of 7.4. Ka is given for H2CO3, that is 7.8 10 to the power minus 7. Let's see how this question will be solved. First of all, let the
volume of 5 molar NaHCO3 is VML. So we'll get from here total volume would be equals to V plus 10 ml is given the volume of NaHCO3 H2CO3, that is V plus 10 ml. Now we can find out the concentration of NaHCO3 and H2CO3. The concentration of NaHCO3 would be equals to 5 into V divided by total volume, that is V plus 10 molar, while concentration of H2CO3 would be equal to 2 into 10, that is the volume, divided by total volume, that is V plus 10, that is molar. Now we know very well that Henderson equation, according to Henderson equation, the pH is given by, that is pKa plus log of concentration of NaHCO3 divided by H2CO3. On putting up the value, we will get here the pH is 7.4 and pKa we can write it in terms of minus log of Ka. We can write it minus log of 7.8 into 10 to the power minus 7 plus log of concentration of NaHCO3, that is this one. We will write it 5V divided by V plus 10, and when we will divide it with the concentration of H2CO3, it will be V plus 10 will be on numerator and 20 will be in denominator. So we can cancel out V by 10, V plus 10 with V plus 10, and from here 5 will also cancel out with 20, that is 4, and we will get here, that is 7.4 is equal to minus log of 7.8 10 to the power minus 7 plus log V by 4. From here log V by 4 would be equals to 7.4 plus log of 7.8 10 to the power minus 7. On solving it, we will get volume equals to 78.36 ml, or approximate we can write it 79 ml. So if you will see in the option, then option 4 is the correct answer. Thank you so much. So guys, the question here is, हमें solubility product, that is KSP of calcium hydroxide is given at 25 डिग्री सेल्सियस. तो इसकी वैल्यू गिवन है हमें 4.42 इंटू 10 की पावर माइनस 5. अब आगे क्या कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन में 500 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विद इक्वल वॉल्यूम, मतलब 500 ml ही ले रहे हैं किसका, 0.4 मोलर NaOH का. तो हमें इस सॉल्यूशन के अंदर बताना है कि कितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन मिलीग्राम्स प्रेसिपिटेट होंगे. तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो उसका प्रेसिपिटेशन निकालना है हमने, कितने अमाउंट, कितने मिलीग्राम्स उसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है. तो उसके लिए जब इसको हम आयोनाइज करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो ये Ca2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव में आयोनाइज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन से, इसलिए यहाँ पे भी 2 रहेंगे. ठीक है, इसकी KSP वैल्यू मुझे गिवन है. ठीक है, KSP वैल्यू से मैं सॉल्युबिलिटी निकाल सकती हूँ कि कितना ये सॉल्युबल हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S मानी तो इसकी भी S होगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 2S. तो KSP निकालने के लिए
मैं क्या करती हूँ, कैल्शियम आयंस हैं जो हमारे और हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, उनका क्या करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करते हैं और जितने मोल्स उसके एक्वायर हो वो उसकी पावर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम S लिया है, हाइड्रोक्साइड 2S लिया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इट विल कम आउट टू बी 4s³ और हमें KSP की वैल्यू दे रखी है 4.42 इंटू 10⁻⁻5। इससे हम S की वैल्यू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो 4.42 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 4, इसका हमने अंडर रूट लिया, तो यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब रूट लेंगे हम। ठीक है, क्यूब रूट लेने पर जो हमारे S की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर आएगी दैट विल बी 0.022 मोलर। ठीक है, मतलब इतना अमाउंट कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन का इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने Ca2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन निकाल लिया। अब आगे देखते हैं हम कि कितनी अमाउंट हमारा और कितने मिलीमोल्स हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 50 कितना हमारा वॉल्यूम था 500 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होंगे। तो हम क्या करते हैं, मुझे कंसंट्रेशन पता लग गई, मैं मोल्स निकालती हूँ। तो इसके मिली मोल्स निकालने के लिए हमें वॉल्यूम पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ईच का वॉल्यूम कितना है 500 ml है। तो हम मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलैरिटी को, जो कि इसकी मोलैरिटी आई है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। तो ये आ जाएगा हमारा 0.022 इंटू 500, ये आ जाएगा 11 मिली मोल्स। ठीक है, इतने मिली मोल्स मेरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की 500 सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सिमिलरली मैं मिली मोल्स दूसरे सॉल्ट के भी निकाल सकती हूँ जो मुझे दिया हुआ है NaOH, वो भी कितना दिया हुआ है 500 ml में ही ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसकी मोलैरिटी मुझे कितनी गिवन है, देखिए दैट इज गिवन एज 0.4 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके मोल्स निकालने के लिए क्या करूँगी, यहाँ पे वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.4 मोलर को हमने 500 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारा 200 मिली मोल्स यहाँ पे एक्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाउंट यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना ज़्यादा मिलीमोल्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो अब टोटल जो मुझे यहाँ से OH नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे तो उससे पता लग जाएगा कि कितने कैल्शियम पॉजिटिव हमारा आफ्टर प्रेसिपिटेशन लेफ्ट आउट हो रहा है। तो यहाँ पे जब दोनों का सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दोनों के मिला रहे हैं। तो यहाँ पे इसके कितने आए थे, जितने कैल्शियम 2 पॉजिटिव होंगे उतने ही OH नेगेटिव होंगे। ठीक है, पर यहाँ पे OH नेगेटिव कितने हमारे 2s, मतलब जितनी हमारे मिलीमोल्स आए हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितने हो जाएंगे 22। सिमिलरली NaOH में तो हमारा देखिए जब इसको हम आयोनाइज कर रहे थे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही देगा, तो जितने Na पॉजिटिव होंगे उतने ही OH नेगेटिव होंगे। तो मिली मोल्स यहाँ पे इक्वल होंगे दोनों के, तो कितने ले सकते हैं OH के लिए 200 ही। ठीक है, तो मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इन दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 + 500। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन में तो हो जाएगा 222 डिवाइड बाय 1000, तो इसकी हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.222 मोलर। तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन के अंदर इतनी आ गई है। अभी तक अभी हमने निकाली थी वो कितनी थी, सिर्फ OH की हमारी CaOH में, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी उसका था। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हमने जब OH नेगेटिव पूरे उसमें डाला तो दोनों में इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा थी, तो हमने अब KSP वैल्यू निकालनी है किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और OH नेगेटिव आयंस की, जब OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज होकर ये हो गई है 0.22 मोलर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस की निकालनी है, तो KSP मुझे पता है कितना है, गिवन है हमें, वो कांस्टेंट रहेगा 4.42 इंटू 10⁻⁻5।
ठीक है। और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.22 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इट विल कम आउट एज 110.5 इंटू 10 की पावर -5 मोलर आ रहा था। ठीक है, इसको मैंने जब 10 की पावर -5 को खोला तो कितना आ जाएगा 0.001105। ये जो आए ये हमारे क्या आए, मोल्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कंसंट्रेशन ली थी वो मोलर में ली थी। ठीक है, तो ये मोल्स आ गए हमारे। अब मेरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इन प्रेजेंस ऑफ NaOH सॉल्यूशन, तो दोनों के सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोले, कैल्शियम 2 पॉजिटिव के हमारे कितने मोल्स आ गए 0.01105 मोल्स। अब स्टार्टिंग में हमारे मिलीमोल्स कितने आए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जब हमारा सॉल्यूशन 500 ml था, मतलब इंडिविजुअली था वो, तब 11 मिलीमोल्स आए थे, जिसको हम लिख सकते हैं अगर डिवाइड बाय क्या करें 1000 तो मिलीमोल्स को चेंज करें तो कितना हो जाएगा 0.011 मोल। ठीक है, तो इतने मोल्स हमारे स्टार्टिंग में प्रेजेंट थे और आफ्टर सॉल्यूशन में, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में इतने मोल्स प्रेजेंट आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कितने इसके रिमेनिंग है, तो यहाँ पे मिली मोल्स निकाल लेते हैं और सिंपल क्या लिखते हैं मोल्स। अभी हम मोल्स करा उसमें कन्वर्ट उसको, तो ये मोल्स ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन, और बोल सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेट हो गए हैं, दैट इज 0.011 माइनस 0.0011105। तो ये हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा 0.01 के बराबर। ठीक है, बाकी 0045 ऐसे कंटिन्यू होगा। तो ये आ गए हमारे इतने मोल्स इसके अंदर। ठीक है, इतने मोल्स हमारे प्रेसिपिटेट हो गए हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव के। क्लियर, वो इनिशियल में से हमने फाइनल को माइनस कर दिया जब हमने सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन निकाली थी। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि कितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलीग्राम्स में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। अभी हमने सिर्फ कैल्शियम 2 पॉजिटिव निकाला है, अब हमें पूरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में निकालना है। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स, हमें मिलीमोल्स निकालने हैं ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज प्रेसिपिटेटेड। वो क्या हो जाएगा, जितने मोल्स कैल्शियम 2 पॉजिटिव के हुए हैं उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मास से। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना होगा, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 32, और हाइड्रोजन का 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2। तो ये टोटल आ जाएगा 74 ग्राम्स। तो इसके मास से, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ जो थे हमारे ये मोल्स थे, इसको चेंज करना पड़ेगा मिली मोल्स में, तो उसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो मिलीग्राम्स आ जाएगा। कितने मिलीग्राम्स हमारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितने मिलीग्राम्स आएंगे, दैट विल बी 743.3 मिलीग्राम्स हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से हम प्रोसीजर फॉलो आउट करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर विल बी 743.3 मिलीग्राम। क्लियर, थैंक यू।